جا رہی ہوں اس سے شاید آپ کو بھی بہت ہی صدمہ پہنچے. کل کے جو مناظر تھے جو ہم نے دیکھے اس سے سب شرمسار تھے, سب کو افسوس ہوا. لاتعداد میسیجز آئے, ہر طرف سے آئے. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی اس کے کنڈیم کیا اس سب کو. مگر جس طرح میرے والد کو کل گھسیٹ کے بدتمیزی سے کھینچ کے وہ لے کر گئے, یہ بہت ہی ایک مجھے افسوسناک حرکت تو تھی, مگر شاید بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے انہوں نے یہ کی. مگر اس کے بعد اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی, پاکستان کے 2 مرتبہ منتخب کردہ وزیر خارجہ, کیئر ٹیکر نہیں الیکٹڈ, 11 دفعہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اپنے حلقے سے, پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے انٹرنیشنل سٹیج پہ, چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو, چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہوں, چاہے وہ پلوامہ ہو, چاہے وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, ہمیشہ چاہے وہ ریاستی اداروں کا دفاع ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا, بہت اعلیٰ طریقے سے لڑا. مگر آج جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے صرف آپ شرمسار نہیں ہوں گے, آپ کا دل روئے گا, آپ کو غصہ آئے گا. اگر آپ کو لگا کہ وہ دھکے جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر دیے اگر وہ برا تھا, تو کل رات جو ان کے ساتھ ایس ایچ او جمال نے کیا ہے وہ اس سے بھی برا ہے. یہ وہی ایس ایچ او ہیں جو انہیں دھکے دے کر لے کر گئے, تھانے میں انہیں ٹھڈے مارے, مکے مارے, ٹارچر کیا گیا. ایک سابقہ وزیر خارجہ کو جو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پہ ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت انتخاب لڑنے جا رہی ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ, یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم التجا کر رہے ہیں. ہم پھر بھی صبر سے کھڑے ہیں, ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کھڑے ہیں, ہم پھر بھی عدالتوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں, اور اس رویے کو دیکھیں, اس فسطائیت کو روکیں, کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میرے بابا کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا؟ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی امیج کی. جب کوئی بھی عورت اس ملک میں کھڑے ہو کے کوئی اپنا کہانی بتائے, کوئی ریپ کا کیس ہو, کوئی گینگ ریپ کا کیس ہو جیسے مختارہ مائی کا تھا, کوئی ایسڈ اٹیک وکٹمز ہو, ہم کہتے ہیں کیا کہ یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں, ان کو چپ کراؤ. چاہے ملالہ ہو, کوئی بھی ہو, ان کو چپ کراؤ, یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. تو آج پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے جب پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور وزیر خارجہ آئے گا, وہ ریپرزینٹ کرے گا پاکستان کو. اور جب وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوگا آپ کا دفاع کرنے, آپ کا کیس لڑنے, تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اس کو ہم سنیں. ایک تو اپنا اس کی ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. شاہ محمود کا ایگزامپل دیکھو, اس کی ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آخر کار ریاست کو الیکٹڈ نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دنیا انہی کو سنجیدہ لیتی ہے. تو خوددارا نظر ثانی کیجئے, کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں اتنی حماقتیں نہ کریں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے. لاڈلے وہ ضرور ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, آپ نے ان کی تاج پوشی کرنی ہے, ضرور کیجئے. یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہہ رہی ہوں جو شفاف انتخابات کرنے آئے تھے مگر تاج پوشی میں مصروف ہیں.
आप कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इव्ज आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। आज के हम जो मुकदमे के मामलात थे उस पर भी थोड़ी बात कर दें। अली बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहरबानों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि आज हुआ क्या है, लेकिन आपके सामने ये रखना भी ज़रूरी है कि आज जो इस्तग़ाज़ा है, प्रोसिक्यूशन है, वो मुकदमा क्या लेके आई थी जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया। मुकदमा ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तकरीर है, तो उसके ऊपर वो कहा गया कि जी उस तकरीर की वजह से हमें वो मतलूब हैं। 7 महीने पुराने केस के अंदर, एक केस के अंदर नहीं, उन्होंने कहा 13 रावलपिंडी के और एक अटक का केस है, उन 14 मुकदमात में हमें वो मतलूब हैं और हम उनकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं। और उन्होंने 30 दिन की, एक दिन की नहीं, 30 दिन की फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त डाली। हमारे वकला ने, हम सब ने बड़े मुफस्सिल दलाइल दिए और अदालत के सामने ये बात रखी कि एक तो ना शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन यहाँ मौजूद थे, उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस वक्त आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल थी, वो उनके साथ वहाँ थे। जब वो यहाँ आए और उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपने अगर बाहर निकलना है तो आप अपने घर वालों के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें और पुरअमन रहें, किसी हदूद को क्रॉस ना करें। उसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अदालत को यह भी हमारे आज रावलपिंडी के वकला ने बताया कि इस केस के, इन केसेस के तो चलान भी पेश कर दिए गए हैं या रिपोर्ट पेश कर दी गई है पुलिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनकी तकरीर का जिक्र ही नहीं है। जो FIR हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ही नहीं है। जो कई लोग यहाँ मौजूद भी थे उन केसेस में, वाक़े के ऊपर, उनको अदालतें बेल दे चुकी हैं या डिस्चार्ज कर चुकी हैं। तो हमें तो यही लगा कि इस्तग़ाज़ा का सिर्फ मकसद जो था पुलिस का, वो उनका फिजिकल रिमांड लेना था और उनको नाहक कैद रखना था। आज जज साहब ने बड़ा टाइम लिया, हम अदालत में ही मौजूद रहे, उन्होंने सारी बातें सुन के, यकीनन ज़रूर उन्होंने हर चीज़ देखी होगी, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट थी वो फजूल थी, वो नाहक थी और उन्होंने जुडिशल रिमांड का कहा है। जाहिर है हम सारे जो कानूनी अपने बाकी चारागोई होगी वो करेंगे, लेकिन ये अच्छा एक फैसला है और हम जज साहब के इस इक़दाम की तायीद करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि जैसे SHO ने उनको फुटे मारे और उनको रात को जगाई रखा, तो शाह महमूद कुरैशी से आपकी खुद बात हुई, तो उन्होंने क्या बताया? जी, ये उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बताया, ये उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है जज साहब के सामने, ये कोर्ट रूम के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात कि ना सिर्फ उनको ठुड्डे मारे, ना सिर्फ उनको मुक्के मारे, ना सिर्फ उनको रात को सोने नहीं दिया गया, एक ठंडे कमरे में उनको बंद कर दिया गया, ना वहाँ पे पीने का पानी था, ना वहाँ पे कोई फ्लश था, तो ना वहाँ पे बाल्टी थी पानी की, ना वहाँ पे वुजू का पानी था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उन्हें रखा गया। जब उनकी रात को आंख लगी तो इन्होंने बत्तियां जला दी, सारी रात उन पे बत्ती जलाए रखी और बाहर से शोर मचाया, कहे लगाए, बस इनको तंग करने के लिए। मैडम ये बताइए, उन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने मेडिकल एड भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप मुझे एक हॉस्पिटल ले जाए, टेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है चेस्ट में, मगर उस अस्पताल नहीं लेके गए। ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू मेडिकल एड। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा पुलिस वालों ने ज़दोकोब की है, ज्यादती की है, तो क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ या DIG IG के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगी और जमानत का क्या करेंगे? देखिए ये इन सारे मामलात को हम देखेंगे। अभी तो हम आपके सामने फैमिली के साथ अदालत से बाहर आए हैं, जहाँ तक बाकी मामलात की बात है हम उनको बिल्कुल देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ हमारे सामने आज क्लियर हो गई है, जहाँ पुलिस की मजीद एक दिन की भी फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, उससे ये बात वाज़ेह है कि इन 14 के 14 केसेस फजूल हैं शाह महमूद कुरैशी की हद तक, और इनकी कोई टांगें नहीं हैं। सो बस हमें इसमें कानूनी चाराजोई के अंदर घसीटा जा रहा है ताकि इन सब के अंदर बेल्स के लिए, डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया जाए, एक अदालत से दूसरी अदालत जाया जाए, और वो सारा काम हम करेंगे इंशाअल्लाह, और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, मतलब शुरू करने से पहले 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी उसकी मजम्मत करता है, करता आया है, करता रहेगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जमात भी पुरअमन है, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज में यकीन रखा है।
उस दिन भी नहीं, मैं ख़त्म नहीं हुई, मगर मैं कहना चाह रही हूँ 9 मई को उस वाक़ये को मुझे लग रहा है अब बहाना बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। क्या पूरे पाकिस्तान में 9 मई में मुलव्विस था? 7 माह गुजर गए, रोज़ नए नाम दर्ज किए जाते हैं। और अगर अब आप देखें तो इसे सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट सेटलिंग है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खुदारा ऐसे ना कीजिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है, CJP साहब, फायजीसा साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, असद मिनल्ला साहब से, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, ये सिविल लिबर्टीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये डिफेंडर्स हैं मेरी नज़र में ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन दिस कंट्री। सो आई रिक्वेस्ट यू सर्स, प्लीज़ आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नज़रसानी कीजिए, ताकि लोगों को 9 मई के केसेस में आज 6-7 माह गुजर गए हैं, आज भी लोगों को उसमें मुलव्विस किया जा रहा है और हरासा किया जा रहा है। प्लीज़ इन्वेस्टिगेट ताकि ये मिसयूज़ ना हो। ये जो वाक़या हुआ अफसोसनाक वाक़या था, हम मज़म्मत करते हैं, मगर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदारा इसे रोकिए। थैंक यू। शुक्रिया। सारे माइक लगे।